So, Koeman is out, but Barca's worries are not. Hello, and welcome back to the Football Parliament podcast, your one stop destination for the football debates, discussions, and opinions. Today, I have Muktesh with me from the Football Macaroni. Thank you so much, Muktesh, for being here. And here we discuss what is the future of Barcelona. Thank you, Thank you Muktesh. so much. Thank you so much for inviting me, brother. It is a delight and an honor to join you. And thanks a lot for inviting me. Hopefully, we have a great time. Definitely, talking about great times, being a Barca fan, how much of a great time are you spending right now? I'd say my great time lasted for at max 2 days, because immediately after Koeman was fired, it was like we all had our hopes high, which we shouldn't have got, of course. Eventually, when the Alaves match arrived, our hopes slowly came down to the reality that okay, the coach isn't the same anymore, but the team is still same. So we had to somehow bring our hopes down. And after the match, so what can I say? After the match, it was like our hopes were at rock bottom. That yeah, no matter what coach we bring, we still need to give time to this team to expect something to come out. But yes, talking about that, Koeman is no more here, so that is a really positive team for the fans. That's a really positive thing for the fans, because I'd say people might say that now no matter which coach comes, he is going to take his time, but the fans would be willing to give their time to those coaches. I don't think the fans had actually lost their faith in Koeman, like completely from top to bottom. They were like, okay, we are fed up with this guy. The way he has been addressing things, the way he has been managing Barcelona, he should not be at the club. So it was confirmed that he should go. But at the same time, being realistic, I think Barcelona fans will now be much more patient. And as we saw versus Alaves, we did lose, but still, I can expect Barcelona fans to, if we lose matches or if we draw matches, we are actually just not going to actually rant about everything like we were doing under Koeman. अब कितना रैंट करोगे मुझे ये बताओ ना अब तो रैंट कर करके भी थक गए हो गया अब भाई रैंट कर करके भाई हम हाँ सही में थक गए. इट अब इज तो लाइक कि बस हो गया, अब फेड हाँ अप हो गए. तो एग्जैक्टली अब आगे बढ़ना है इन चीजों से. अब मेन चीज ये थी कि बीइंग योर चैनल फॉलोअर एंड इफ समवन इज न्यू टू आवर चैनल गो चेक आउट फुटबॉल माकरोनी लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन इनको फॉलो करते हुए आई नो दिस फैक्ट एक बंदा जो सबसे ज्यादा खुश था कोमेन आउट होने से वो था ये मुकेश अब बहुत ज्यादा. जब मैंने न्यूज पढ़ी थी आई न्यू कि मुझे मुकेश की वीडियो उस दिन देखनी है बिकॉज आई वांट हिज रिएक्शन कि कोमेन सैक होने पे क्या रिएक्शन है क्योंकि कोमेन वाज नॉट जस्ट अ मैनेजर जो फुटबॉल पिच पे नहीं था लेकिन ऑफ द पिच भी वो बहुत ज्यादा चीजें कर रहा था जो फैंस को पसंद नहीं आ रही थी एंड दैट इज व्हाट बारसा फैंस आर नॉट यूज्ड टू बाकी क्लब्स ने ऐसे मैनेजर्स देखे हैं बट बारसा ने हमेशा एक मीडिया फ्रेंडली एक क्लब फ्रेंडली और एक फैंस फ्रेंडली मैनेजर हमेशा देखा है डिस्पाइट द लॉसेस सो हाउ डू व्हाट डू यू थिंक उसके बारे में कोमेन के लिए आई थिंक दिस वॉज द मेन रीजन जिसकी वजह से कोमेन गया बार्सिलोना से. दिस इज लिटरली द मेन रीजन, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ मीडिया एंड फैंस. लाइक प्लेयर्स के साथ में कनेक्शन की बात भी नहीं कर रहा. इट इज लाइक कि उसका मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स के साथ कनेक्शन ठीक था, क्योंकि वो उनको लेकर ही, भाई जो डच कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. या एक तो वो भाई साहब डच डच प्लेयर ही लेके आया जा रहा था, हर दूसरा डच बंदा उठा के लेकर आ रहा है वो. अभी तो वाइनाल्डन नहीं आया, वरना हाँ वो भी वाइनाल्डम भी होता. आता एंड आई एम लाइक सो थैंकफुल वाइनाल्डन नहीं आया. अगर वाइनाल्डन आता ना, तो आई एम टेलिंग यू, वी कुड हैव सीन बुस्केट्स ऑन द बेंच. कि पता है फ्रेंकी डियोंग खेल रहा होता, वाइनाल्डन खेल रहा होता, और पेड्री पेड्री और बुस्केट्स में से कोई एक स्विच करके खेल रहा होता. इट लाइक आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि भाई जब वो बंदा लूक डियोंग को नहीं छोड़ रहा था, तो वाइनाल्डन को क्यों छोड़ेगा. एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइनिंग्स भी बहुत ज्यादा मतलब विदाउट एनी रीजन आप समझ नहीं सकते उसने साइनिंग्स क्यों करी अब एंड आई नो अब जब से न्यू मैनेजर आएगा जावी आएगा या फिर अभी जो इंटरनल मैनेजर भी है लुक डियोंग का करियर एट बारसा इज ओवर मतलब अगर इंजरीज ना हो तो ही इज नॉट गेटिंग इनटू द फर्स्ट टीम इन एनी हाउ क्योंकि इतनी क्वालिटी है फ्रंट लाइन में कि आपको लुक डियोंग को खिलाना ना पड़े मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बिल्कुल. and you're discussing about this manager as well. Barca, as you have said in your previous video, जो मैंने आपकी बारसा की वीडियो देखी कि it is not just about the coach, it is about the team as well. कोच गया कोच खराब था बट टीम इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट कि आते ही चेंज हो जाओगे एंड यू आर गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन व्हाट आर योर थॉट्स कि व्हाट इंप्रूवमेंट्स डू द टीम और डज द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स नीड कि प्लेयर्स भी अब थक चुके हैं पिच पे दे डू नॉट नीड टू दे डू नॉट वांट टू फाइट फॉर द मैच
इट इज लाइक कि देखो अब जब नया नया कोच आएगा, नया नया स्टाफ होगा, नए होप्स होंगे, मीडिया में नई बातें होंगी, फैंस आर गोइंग टू बी मच मोर एनकरेजिंग, और इट इज लाइक कि चाहे कुछ भी हो, एक नई पॉजिटिव वाइब रहेगी। तो जो मेंटालिटी वाला पार्ट है, मेरे चैनल पे ना, इफ कोई भी अगर जो फॉलो कर रहा होगा, इट वुड बी लाइक आई रियली फोकस ऑन मेंटालिटी ऑफ प्लेयर्स, कि प्लेयर मेंटालिटी, आई थिंक कि बाकी शायद कोई इस मामले में इतना बात ना करता हो, बट आई रियली बिलीव कि प्लेयर मेंटालिटी डिसाइड्स एवरीथिंग। Like I'm telling you, कि Manchester United now is going to literally rip apart Atalanta in the next match. I'm telling you, मतलब write it down. I'm sure about it कि चाहे वो tactics change कर ले, they are really going to rip apart Atalanta in the next match. बट क्यों? दैट इज मोर Because टू प्लेयर्स की मेंटालिटी भी ना। उसकी उस ड्रेसिंग रूम में क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, आपके पास कवानी है, आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, आपके पास पोग्बा है जो प्लेयर्स को सिखा सकते हैं, वरान है जो चाहते हैं टीम को जीतना। यहाँ पे मुझे no, वो प्लेयर्स की काउंटिंग नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज लाइक कि जो प्लेयर मेंटालिटी, इट इज लाइक एग्जैक्टली वहां पर प्लेयर मेंटालिटी जो है वो बारसा में लैक करती है। तो एट द सेम टाइम आई से कि चलो अब ये धीरे धीरे बन जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब जनरेट हो जाएगी, तो धीरे धीरे ये मेंटालिटी ठीक हो जाएगी। बट देन इफ वी कम टू द पार्ट कि भाई टीम में वीकनेस क्या है, तो आई वुड से क्वालिटी इन द फ्रंट थ्री। कि यार वी ऑल नो कि बार्सिलोना हैज बीन अ टीम ऑफ मिडफील्डर्स सिंस एजेस। कि अगर कोई भी तुम बोलो बार्सिलोना, व्हाट इज बार्सिलोना, इट इज अ टीम ऑफ मिडफील्डर्स। मिडफील्डर्स चलाते हैं बार्सिलोना की गेम, और ये हमेशा से चलता है, पिछले 20 साल से चलता है, और ऐसा ही चलता रहेगा। बट उन उस मिडफील्ड की यूटिलाइजेशन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर अटैकर्स। अगर तुम्हारे पास अच्छे अटैकर्स है, तो तुम्हारी मिडफील्ड का बेस्ट निकल कर आएगा, क्योंकि वो आगे बॉल्स बनाएंगे, वो तुम्हें असिस्ट देंगे, इन द एंड तुम्हें फिनिश करना है। और अगर तुम्हारा मिडफील्ड में कोई भी हो, अगर तुम लोग अटैकर्स खत्म ही नहीं कर पा रहे, तो इट डजंट मैटर कि तुम्हारे पास चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स का भी अगर तुम ट्रायो खिला लो इस अटैक के साथ, तो भी बार्सिलोना का कुछ नहीं होने वाला। एंड टॉकिंग अबाउट मेंटालिटी एंड मिडफील्डर, एक नाम जो सबके माइंड में आता है फॉर बीइंग अ बारसा फैन इज जावी। ही इज कमिंग टू बारसा नाउ। डू यू एक्सपेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सी मेंटालिटी वाली बात जो जावी पक्का लाएगा, प्लेइंग फॉर द क्लब जावी पक्का लाएगा, लेकिन बीइंग अ फुटबॉल मैनेजर यू नीड दोस टैक्टिक्स। हमने बहुत सारे प्लेयर मैनेजर्स देख लिए हु हैव मैनेज्ड फॉर देयर क्लब्स, 50% have been successful, 50% have not been. So how do you see Javi as the mastermind or the tactical man in the boardroom now? ओके, आई से कि अब हमने ना बहुत सारी चीजें नोटिस करी है अंडर कोमेन, कि ना बार्सिलोना का एक प्लेइंग स्टाइल ना इज लाइक मिक्स्ड अप नाउ, मेस्ड अप हो चुका है। कि वो लोग आधे आधे टाइम पोजीशन रखते हैं, फिर क्रॉसेस डाल देते हैं। बार्सिलोना पहले ऐसे नहीं करती थी, दे यूज्ड टू कीप द पोजीशन, और वो लोग इट वाज लाइक एन ओपन एरो, कि पीछे से ओपन पोजीशन चलती थी, और देन आगे जाके कन्वर्ज होके दे यूज्ड टू अटैक फ्रॉम द मिडल। क्रॉसेस नहीं डालते थे वो लोग इतने, कभी कभार डालते थे, बट इट वाज नॉट लाइक आइडेंटिटी। एंड अब बार्सिलोना की ना पोजीशन इज लाइक अ यू शेप पोजीशन, कि वो लोग पीछे से ओपन चलती है, एंड देन साइड में जाके इट इज लाइक क्रॉस अंदर की तरफ, Cross and hope दोनों एंड mostly. से। हाँ, That is it. क्रॉस एंड होप, Hmm. दैट इज व्हाट बार्सिलोना हैज बिकम, एंड दैट इज अ मिक्स्ड स्टाइल ऑफ प्लेइंग अंडर कोमेन, जिसकी वजह से इतनी क्रिटिसिज्म मिलता आ रहा है उसको। क्योंकि इस वजह इसके लिए ना तुम लोगों को डिपेंड करता है, इस सिस्टम के लिए यू वांट प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द मिडल, अब वो जो तुम्हारी कोचर बॉल चाहिए हेड सेंटर में जो कोचर चाहिए तुम्हें एक जो सेंटर में, मारे। लुकाकू जैसे प्लेयर। ये एग्जैक्टली exactly. और आपके कोचर के नाम पे है गोट वेट और लुक डेयोंग। लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एग्जैक्टली, इट इज लाइक कि तुम्हारे पास वैसे प्लेयर ही नहीं है जिस हिसाब का तुम सिस्टम बना रहे हो, वैसे तुम्हारा प्लेयर ही नहीं है। तो जब शावी आएगा, तो टैक्टिकली एक ये प्लस पॉइंट रहेगा कि ये चीज वो एक ही सिस्टम पकड़ेगा, एंड ही इज गोइंग टू बिल्ड ऑन दैट, कि एंड चाहे उस पर थोड़ा टाइम लगे। टिकी और टाका वो विल बी बैक। एक टिकी टाका विल बी बैक, टिकी टाका उसको वो अल साद में भी हमने देखा। इट इज लाइक कि वो एक जगह जाकर, एक नए क्लब में जाकर, ही इज इंट्रोड्यूसिंग दैट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ फुटबॉल। तो जब वो बार्सिलोना वापस आएगा, विच इज द टिकी टाका, बार्सिलोना इज टिकी टाका, अगर वो वहां पे वापस आके ही वो लोगों को टिकी टाका नहीं खिलाएगा, तो फिर फायदा क्या रह एंड जाएगा। मे बी पीपल आर मतलब जोक्स बनाते हैं कि हम टिकी टाका पे क्यों फोकस करते हैं, बट आई विल से मैं टिकी टाका पे इसलिए फोकस करता हूँ बिकॉज ला मासिया में प्लेयर्स ग्रो ही टिकी टाका देखे हुए हैं। ला मासिया का बेस ही टिकी टाका फुटबॉल है। ये नहीं कि मैं सीनियर फुटबॉल मैचेस देख रहा हूँ, मैं ला मासिया के अगर मैचेस भी देखता हूँ तो दे नो हाउ टू पास द बॉल। वहां पे बेसिक थिंग इज टू पास द बॉल एंड मूव फॉरवर्ड।
प्रोग्रेस जो उन्होंने अपने सीनियर्स को देखा है करते हुए, योर मेसी, योर इनिएस्टा, योर जावी, and that is where players like Arujo, Pedri, Gonzalez and any other like even Ricky Puig जब उसका तो chances बनते हैं खेलने के, they know how to make the game in the midfield. So that is why I feel so. And one more question that is a very hot trending topic is, will Xavi go for a back three or a back four? Because वो ट्रांजिशन करता है एक मैच में, बैक थ्री को बैक फोर में कन्वर्ट करता है और बैक फोर को बैक थ्री में कन्वर्ट करता रहता है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मैच. बट डू यू फील वो कतार वाली स्ट्रैटेजी आप स्पेन में फॉलो कर सकते हो? एंड डू यू हैव द प्लेयर्स कि आप वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो? I think he will go for a back three more often. Reason being कि why I think this is going to happen. Let's keep in mind कि Barcelona में कैसे कैसे players है. We have got एक second bro, just a second. So where was I? Just The players back. Yes. So as I said कि I think Barcelona is going to, Xavi is going to go for a back three. ऐसा क्यों होने वाला है कि अगर हम देखें कि बार्सिलोना में कैसे प्लेयर्स हैं, तो डिफेंसिवली इट वुड मेक मच मोर सेंस टू हैव 3 डिफेंडर्स ऑन द पिच. अगर हम एक्सपेक्ट करें कि चलो पीके को हम हटा देते हैं, तो इट इज लाइक अगर हम सेंटर में एक्सपेक्ट करें अराउहो खेल रहा है, ऑन हिज वन एंड ही हैज गॉट गार्सिया हु इज गुड ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल थोड़ा स्ट्रगल करता है बट ऑन द बॉल इज वेरी गुड. ऑन द अदर हैंड ही हैज गॉट उमतीती और लॉन्गले, जिसको अब टाइम कह रहे हैं लोग कि यार इन द एब्सेंस ऑफ अराउहो और पीके अब दोनों इंजर्ड है, तो इन दोनों को चांसेस देने पड़ेंगे. तो इट इज लाइक कि उन दोनों को चांसेस मिलेंगे. अगर वो नहीं है तो ऑफ कोर्स पीके भी हो सकता है उसकी जगह. तो कहीं ना कहीं नहीं, आई टेल यू बैक थ्री की बात करो इस वक्त में. तो इट इज लाइक कि टू प्ले ऑल दीज थ्री एंड इफ दे आर एबल टू फुल्ली प्ले टू देयर पोटेंशियल, तो इट्स लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन जाएगा. लाइक वी सी इन चेल्सी, योर चेल्सी, they don't have got any wingers or kind of right back or left back in their back three. They have got proper center backs kind of personalities in their back three. तो अगर वो अप्रोच चावी लेता है to just make sure कि उनका डिफेंस स्ट्रांग हो जाए, तो I can expect this to happen. Now as I said कि भाई वो लोग he can play गार्सिया की जगह मिंगुएसा if he wants a much more aggressive approach. बट अगर मैं डिफेंसिव अप्रोच की बात करूं तो ही इज गोइंग टू गो फॉर दीज बैक थ्री. और फिर हम अगर आते हैं आगे 4 में, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यार हम देखते हैं कि कैसे जॉर्डी एल्बा, उसका एक एग्रेसिव रोल रहता है इन बार्सिलोना. तो अगर वो उसको बैक 4 में खेलेगा तो इट इज लाइक उसकी एक ड्यूटी बनी रहेगी ज्यादा आगे जाने की. बट इफ ही प्लेज इन द मिडफील्ड तो उसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अटैकिंगली रहेगा. तो तुम्हारे पास डिफेंस में 3 ऑलरेडी तुमने सुपीरियर प्लेयर्स डाल रखे हैं एंड एट, तो इससे ना जॉर्डी एल्बा ज्यादा आगे जा पाएगा. एंड वी हैव सीन जब भी एल्बा प्लेज गुड ही इज एबल टू क्रिएट मोर चांसेस. ऐसा बहुत बार होता है. ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट डेस्ट, वी हैव गॉट मिंगुएसा. हमारे पास ये दोनों प्लेयर है वी हु कैन रन द माइल, हु कैन क्रॉस, हु कैन प्ले द गेम ऑन द राइट विंग. एल्बा वाला नॉट द एल्बा लेवल बट दे कैन प्ले अ गुड गेम ऑन द राइट विंग. एंड देन यू हैव गॉट वेरियस मिडफील्ड ऑप्शंस. तुम्हारा मिडफील्ड भर रखी है. तुम्हारे पास ऑफ कोर्स बुस्केट्स है, तुम्हारे पास फ्रैंकी डी जॉन्ग है. तो आई कैन एक्सपेक्ट कि इट इज नॉट रियली गोइंग टू बी अ 3-4-3. व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना टू प्ले इज अ 3-4-2-1. दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि बार्सिलोना के पास अभी ना वो 3 ऑप्शन नहीं है टू प्ले स्ट्राइकर्स, टू प्ले एज इन द फ्रंट 3. उनके पास मिडफील्डर्स भर के हैं बट दे डोंट हैव दैट क्वालिटी ऑफ अटैकर्स. लाइक अगर हम अभी देखें तो यू वुड लाइक टू प्ले मेम्फिस डीपे अप फ्रंट एंड देन जो 3-4 मतलब आई सेड 3-4-2-1, तो जो 4 में जो बीच के मिडफील्डर्स बनते हैं, यू कैन अगर हम कहे कि भाई अगर फिट हो जाते हैं तो फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड बुस्केट्स, एंड देन यू हैव गॉट 2 अदर मिडफील्डर्स जिसके अंदर तुम कुतिन्हो खिला सकते हो, पेड्री, गावी, निको, बहुत सारे ऑप्शन है. तो इट इज लाइक कि इससे ना रोटेशन भी चलती रहेगी एंड दिस वुड प्रोबेबली हेल्प मैक्सिमाइज वो जो मैं बात कर रहा था कि सेंटर से गेम चले. तो अगर ये फॉर्मेशन खेलेगी तो सेंटर से गेम चलेगी बारसा की. एंड डेफिनेटली जो मिडफील्ड की बात बताई इन अ 3-4-2-1 जो टूकल भी खेलता है, व्हाट आई नो इज यू नीड अ डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर. जो सर्जियो बुस्केट्स इज बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन वो अपने डे पे होगा. एंड यू नीड अ प्लेयर जो बॉक्स टू बॉक्स रन करे. एंड डी जॉन्ग से बढ़िया मिडफील्डर इन हिज प्राइम कोई नहीं है मेरे हिसाब से. एंड डेफिनेटली फिर वो फ्रंट थ्री को एक फ्रीडम दे देगा. अभी उनके पास फिक्स रोल है, बाहर जाओ और क्रॉस करो. उसका वो फ्रीडम देगा कि यू कैन रन द पिचेस, जो कुटिन्हो लिवरपूल के लिए करता था व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम. पेड्री डेवलप कर रहा है एज हिज गेम, जो वो फ्रीडम उसको चाहिए. ही कैन रन
60 kilometers a day, वो इतना भाग सकता है, उसके पास potential है. And you Hmm. need a Hmm. poacher like Aguero who knows how to finish, who you have Hmm. Depay who knows how to put the ball behind in the net. मतलब एक चीज Hmm. है बारसा के पास. और फाटी, जिस दिन फाटी चल जाए, he can play the number 10 role, he can play the number 7 role, he can play anywhere on the pitch where he wants to. It gives him the freedom, and that is the best जो बारसा के लिए इस टाइम पे हो सकता है. But many fans are also worried about Ter Stegen. Do you feel Ter Stegen should be relieved of his duties, or Ter Stegen should stay? मैं जस्ट अभी मैं आई सेड कि मैं इससे पहले भी किसी से बात कर रहा था, तो ही आस्क्ड मी द सेम थिंग दैट डू यू थिंक टर स्टेगन शुड बी यू नो trusted by this position of being the first goalkeeper for Barcelona. And I told him, yeah, there was a time when Neuer dipped for 2 seasons. Manuel Neuer, the best goalkeeper probably we all are going to witness अभी के लिए. तो जितने हमारी एज के लोगों ने जब भी विटनेस करा, नॉयर के कंपैरिजन में कोई आता ही नहीं. Casillas, I would say, on his best was somewhere around it, but Neuer is on a different level. So he dipped for 2 seasons, and जब तक वो इंजर्ड नहीं होता था ना, तब तक Bayern was not putting him out. Putting him out. Even Germany was not putting him out. Even though he was not having a good run, फिर भी वो लोग उसको ट्रस्ट कर रहे थे because of the same reason I am going to back Ter Stegen. क्योंकि हर मैच में there are one or two places, one or two times जब ऐसा लगता है कि ये तो गोल हो गया, but then the goalkeeper saves it. अभी भी ये हो रहा है. तो उन्हीं एक दो रीजंस की वजह से ना, यही एक दो चांसेस होते हैं, ये एक दो सेव होते हैं जो मैच बचा लेते हैं. एंड एज आई सेड कि नॉयर आल्सो डिप्ड फॉर 2 सीजन, एंड टर स्टेगन का ये सेकंड सीजन है व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग. तो अगर हम थोड़ा टाइम दे और विद द राइट डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है इन कि एक सपोर्ट रहता है भाई गोलकीपर को. उसे पता रहता है कि मुझे यहाँ नहीं कवर करना, मुझे यहाँ कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉट लगेगा तो डिफेंस है वो ब्लॉक कर लेगा. बट इस टाइम तो डिफेंस इतना खुला रहता है कि कहीं से भी शॉट पड़ सकता है. इट इज लाइक ही हैज टू कवर द होल गोल. तो अगर एक बार एक सही डिफेंस मिल जाएगा उसको, एंड विद टाइम अगर ही गेट्स ऑन टू हिज बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड. तो आई थिंक दो ही इज नॉट इन फॉर्म, दो ही इज स्ट्रगलिंग सेकेंड सीजन लगातार, he is not reliable at times, but still I think we are going to see him in the goal for a time. Definitely, like if have you for this on this channel today, so one thing I'll ask you, Xavi आएगा. Do you think एक साइनिंग जो बहुत एक रियलिस्टिक साइनिंग है जो जनवरी में इज मच नीडेड, बिकॉज ये नहीं होता कि एक नया मैनेजर आए उसके पास सारे रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हो. वन साइनिंग यू थिंक जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है जनवरी में, एंड दैट शुड हैपन फॉर Xavi टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द टीम. ये मतलब इस का आंसर करने के लिए ना, इट इज लाइक कि माय थॉट्स और द लिस्ट इज रियली रिस्ट्रिक्टेड और शॉर्टेंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन. जब जो फाइनेंशियल चीजें चल रही है बात में, इस वजह से बहुत ज्यादा सफर करता है ये क्वेश्चन. तो इट इज लाइक कि कहने को तो एवरीवन वाज विलिंग कि यार काश डिलीट आ जाए, काश आ जाए, पर नहीं आ सकता ना. एग्जैक्टली, इट इज लाइक कि डिलीट वाज द आंसर ऑफ एवरी बास ऑफ डिफेंसिव प्रॉब्लम. everyone was sure कि डिलीट आ गया तो it is the answer to all the defensive problems in Barcelona. but आ नहीं सकता. हालैंड आ जाए तो सारे अटैक के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. बट देन इट इज लाइक कि अगर तुम लोग फाइनेंशियली देखो तो इट मेक्स मच मोर सेंस टू नॉट साइन अ प्लेयर अदर देन डिफेंस. क्योंकि अगर हम स्ट्राइकर्स की बात करें जो अच्छे स्ट्राइकर्स है इस वक्त, उन सबके प्राइसेस बहुत हाई हैं. बट स्टिल इफ यू वांट मी टू पिक समवन, so I'd say, let's say, who was being linked with Barcelona in the recent years, और जो अवेलेबल हो सकता है in an affordable price. तो I would say कि पिछले कुछ सीजन में I remember अच्छे से Pulisic was really linked with Barcelona, and because Pulisic is struggling with injuries, there is a very high chance कि Chelsea is willing to let him go आगे जाके. Though I know कि though I know कि Chelsea loves Pulisic, बट अगर जो उसके इंजरीज वाला फैक्टर है, अगर उसका फायदा उठा पाए बार्सिलोना, तो देयर इज अ चांस कि दे आर एबल टू गेट हिम इन एन अफोर्डेबल प्राइस. डेफिनेटली, एंड दैट माइट बी रेगुलेटेड जो आपके मेरे हिसाब से राइवल्स करते हैं, बिकॉज चेल्सी आर लुकिंग टू गेट बैक ईडन हजार्ड इन एनी फॉर्म इफ दे आर अलाउड टू. तो
maybe a swap from Spain to England and England to Spain is possible if you get Pulisic, because Dembele को भी एक वो mentality मिलेगी, उसको अपना एक old friend मिलेगा, he'll be able to express himself, या फिर Dembele को replace करने के लिए Pulisic आ सकता है. This could be one thing. Definitely. I don't think कि Barcelona should let go Dembele. Will or should? I don't think. क्योंकि अगर Dembele is able to get off his injuries वाला part, he will become the main man at Barcelona. He will become the star of Barca. So I don't think कि he should. Barcelona should be willing to let him go. It बहुत बड़ा gamble हो जाएगा कि जब तक वो प्लेयर बार बार इंजर्ड हो रहा था तुमने अपने पास रखा, एंड नाउ लुक्स जब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े अब वो कम टाइम के लिए इंजर्ड हो रहा है, इंजरी ड्यूरेशन उसकी कम होती जा रही है, तो अगर वो फाइनली फिट हो जाए एंड इस स्टेज पे आके तुम उसे बेच दो एंड देन ही गोज ऑन टू हिट अ करियर पीक, तो तुम तो फिर चूते कट गया तुम्हारा. वापस वही फाइनेंसेस वाले जोक बनेंगे. हाँ कि क्या हक दिया, फिर से हक दिए. So I think talking to Muktesh is always fun. Talking about Barcelona, talking about football is always fun to him. So thank you guys if you have been watching till here. Thank you Muktesh for featuring on our channel. His links will be in the description down below. And by the time till the time, see you guys. Thank you.